اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنے بدبخت اور اتنے منحوس لوگ ہیں کہ جب ایک پاکسو شہر کے اندر ہوا اس کے بعد سیم ہے. ڈومرالے کا کیس بھی پاکسو کا کیس ہے اور شہر کے اندر ان کی پارٹی کے اسٹار پرچارک کے اوپر جو کیس بنا وہ بھی پاکسو کا کیس ہے. آپ ڈومرالے کے درندے، ڈومرالے کے آروپی کے تعلق سے یہ کہتے ہو کہ اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج کی اس مشورتی میٹنگ کے صدر صاحب اور اسلام پارٹی کے قائد و بانی آصف شیخ رشید صاحب اور پارٹی کے تمام ہی ذمہ داران، یہاں پر موجود میرے تمام ہی ساتھی، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، کسی شاعر نے کہا تھا بات جو پردے میں ہے وہ بات بھی کھل جائیں گی، بات جو پردے میں ہے وہ بات بھی کھل جائیں گی، کل تلک خود پہ تیری ذات بھی کھل جائیں گی. ہم نے دیکھا ہے سکندر کو فنا ہوتے ہوئے، ہم نے دیکھا ہے سکندر کو فنا ہوتے ہوئے، وقت آنے دے تیری اوقات بھی کھل جائیں گی. آنے والا الیکشن کارپوریشن کا الیکشن ہے اور یہ الیکشن انتہائی اہمیت کا حامل الیکشن ہے. ہم نے سنا ہمارے لیڈر نے گزشتہ دنوں ایک تقریر کے اندر یہ بات کہی تھی آصف شیخ صاحب نے کہ یہ الیکشن پارلیمنٹ کے الیکشن اور اسمبلی الیکشن سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور میرا ایسا ماننا ہے کہ مالیگاؤں والوں کے لیے یہ الیکشن اب تک کے تمام الیکشنوں سے بڑھ کر کے یہ الیکشن ہے، کیونکہ یہ الیکشن کے اندر کارپوریشن کا الیکشن ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مالیگاؤں شہر کے اوپر فرقہ پرستی کی جو تلوار لٹک رہی ہے اور آج ہمارے مالیگاؤں شہر کے کتنے لوگ آج بے قصور اور بے گناہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید و بند کی صحبتیں جھیل رہے ہیں. گزشتہ بھی اسمبلی الیکشن ہوا، پورے ملک کے اندر کہیں پر بھی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ایک مینوفیسٹو کینڈیڈیٹ عوام کے سامنے رکھتا ہے، ایک وعدے عوام کے سامنے رکھتا ہے کہ ہم اگر چن کر کے آئیں گے تو ہم یہ مینوفیسٹو اور یہ کام ہم آپ لوگوں کے کریں گے. لیکن آپ نے دیکھا گزشتہ اسمبلی کا الیکشن جو شہر کے اندر ہوا وہ اچھائی اور برائی پر الیکشن ہوا. آپ سمجھدار لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں یہ اچھائی اور برائی یہ کوئی مینوفیسٹو نہیں ہے. یہاں پر اگر کبھی آپ اچھے ہو، میں برا ہوں، میں اچھا ہوں، آپ برے ہو، تو یہ ہماری اپنی نجی زندگی ہے، یہ ہماری اپنی نجی زندگی ہے. اور اچھائی اور برائی کا الیکشن لڑنے کے بعد 1 سال مکمل نہیں ہوا، شہر نے دیکھا کہ کیا رزلٹ شہر کے سامنے آیا. آپ نے اچھائی اور برائی کا مدعا لایا تھا اور اس شہر کو یہ سبز باغات دکھائے تھے کہ مالیگاؤں شہر ریاست مدینہ بن جائے گا. لیکن آپ کے اچھائی اور برائی کے اسٹار پرچارک آج کون کہاں پر ہے شہر جانتا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنے بدبخت اور اتنے منحوس لوگ ہیں کہ جب ایک پاکسو شہر کے اندر ہوا اس کے بعد یکے بعد دیگرے 15 دن کے اندر 6 سے 7 پاکسو کے کیس یہ شہر کے اندر ہو گئے. نابالغ بچیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ زیادتی کرنا اور غلط حرکت کرنا. ہم نے دیکھا ڈومرالے کے اندر ایک معصوم بچی جو ایک کلی تھی، ابھی وہ پھول بھی نہیں بنی تھی کہ کسی ظالم ہاتھوں نے اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اسے مسل دیا. اس کی لاش گویا چیخ چیخ کر کے یہ کہہ رہی تھی کہ کیا خطا میری تھی ظالم، تو نے کیوں توڑا مجھے، کیوں نہ میری عمر ہی تک شاخ پہ چھوڑا مجھے. وہ معصوم بچی
उसके साथ ज्यादती करके उसको कत्ल कर दिया गया। और शहर के आमदार साहब 20 दिन के बाद डोंगराले पहुंचे। खैर वो उनका मसला है, लेकिन शहर के अंदर अच्छाई और बुराई का नारा देने वाले और अच्छाई और बुराई के स्टार प्रचारक भी तो पॉक्सो के अंदर आज उनके वो भी तो जेल की सलाखों के पीछे है, जिन्होंने अच्छाई और बुराई का नारा दिया था, जिन्होंने ये बुनियाद बना करके इलेक्शन लड़ा था कि आप अगर हमें चुन करके देगा तो हम शहर से तमाम तर बुराइयों को खत्म कर देंगे, शहर से तमाम बुराइयों को खत्म कर देंगे। अभी मैंने देखा आमदार साहब ने डोंगराले के अंदर भी ये बात कही और असेंबली के बाहर भी आज उन्होंने एहतजाज दर्ज करवाया। डोंगराला शहर जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने वो बच्ची की हिमायत के अंदर ये जुमला कहा कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कानून बनना चाहिए जो मजहब इस्लाम के अंदर जो कानून है। मजहब इस्लाम के अंदर ये कानून है कि अगर कोई शादीशुदा आदमी बलात्कारी करता है, जिना करता है और गलत काम करता है तो उसे शहर के बीच में ला करके संसार कर दिया जाता है, और अगर कोई कवारा गैर शादीशुदा करता है उसे 100 कोड़े मारे जाते हैं। डोंगराले का केस भी पॉक्सो का केस था और शहर के अंदर आपकी पार्टी के स्टार प्रचारक आज जो जेल की सलाखों के पीछे हैं उनके ऊपर भी पॉक्सो का केस है। आप शरीयत एक है, खुदा एक है, रसूल एक है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। केस दोनों सेम है। डोंगराले के केस के अंदर आप सरकार से ये डिमांड करते हो कि यहाँ पर इस्लामी कानून के मुताबिक सजा देना चाहिए। ऐसे दरिंदों को और ऐसे शैतानों को समाज और मुआशरे में रहने के लिए कोई जगह नहीं है, और आप अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक के लिए ये कहते हैं। केस दोनों सेम है। डोंगराले का केस भी पॉक्सो का केस है और शहर के अंदर उनकी पार्टी के स्टार प्रचारक के ऊपर जो केस बना वो भी पॉक्सो का केस है। आप डोंगराले के दरिंदे, डोंगराले के आरोपी के ताल्लुक से ये कहते हो कि इसे इस्लामी कानून के मुताबिक सजा दी जाए। वो बच्ची किस धर्म से ताल्लुक रखती है ये 2 नंबर की बात है। हमारा ईमान है, यहाँ सब हमारे मुसलमान भाई बैठे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुल्लु मौलूदिन युलदु अला दीनी फितरा, हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है। और आप शहर के पॉक्सो के आरोपियों के ताल्लुक से कहते हो कि गुनाह किससे नहीं होता। आप अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक जो पॉक्सो के अंदर जेल की सलाखों के पीछे है उनके ताल्लुक से कहते हो कि गुनाह किससे नहीं होता। हम सब गुनहगार हैं। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन खैरिल खत्ताइन तव्वाबुन, आदम की औलाद तुम सब के सब गुनहगार हो। आपने अपने जो पॉक्सो के सुपरस्टार थे आपने उनको क्लीन चिट दे दी, और डोंगराले के आरोपी के ताल्लुक से आप कहते हो कि इसे इस्लामी कानून के मुताबिक सजा दी जाए। इस्लाम का नजरिया ये नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अरब की एक बहुत मालदार, मशहूर और रईस खानदान की औरत ने चोरी की। जब वो केस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो अल्लाह के नबी ने कहा कि उसके हाथों को काट दिया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह ये बहुत रईस, अमीर और जानी पहचानी खानदान से ताल्लुक रखने वाली खातून है। अल्लाह के नबी ने उस वक्त जो जुमला कहा था वो ये था कि ये चोरी अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद भी करेंगी तो उसके भी हाथ ये शरीयत में काटे जाएंगे। और आप ये दोहरा किरदार, उनके लिए कुछ और सजा की मांग, अपने हीरोज के लिए कुछ और सजा की मांग। निकट अमरोही का एक गीत था, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा,
दोहरा है तेरा किरदार, अरे रे बाबा ना बाबा, ऐसा तो नहीं चलेगा ना सरकार। आप किस सिमत में कैसी सियासत, कैसी बात कर रहे हो? शहर के अंदर मोहम्मद कैफ नामी बच्चा था, उससे पहले एक बच्चे के साथ ज्यादती करके उसका कत्ल कर दिया गया। शहर के अंदर अभी पॉक्सो के अंदर कितनी नाबालिग बच्चियों के साथ ज्यादती हुई। आपका मतदार संघ, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, डोंगराले आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। बहैसियत इंसानियत आपने आज असेंबली के बाहर अपना एहतजाज दर्ज करवाया, हम सलाम करते हैं आपको। लेकिन आज जो बैनर आप असेंबली के बाहर लेकर के बैठे थे, उसमें सिर्फ डोंगराले की बच्ची जिसके साथ ज्यादती हुई उसका फोटो था। हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने एहतजाज दर्ज करवाया, बैनर लेकर के बैठे थे। डोंगराले की जो बच्ची थी वो मासूम कली थी, एक तरफ उसका फोटो था, दूसरी तरफ उसके आरोपी का फोटो था जिसके गले के अंदर फांसी का फंदा था। उसके ऊपर हम आपसे ये उम्मीद रखते थे कि आप शहर के अंदर, आपके मतदार संघ में, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आपके अच्छाई और बुराई के नारे के अंदर, आपके वो वादों के अंदर जो वादा आपने आवाम से किया था कि अगर आप मुझे चुन करके देंगे तो मैं शहर में अच्छाई फैलाऊंगा, अच्छाई आएंगी। आप उन बच्चियों के, आप उन मासूम बच्चियों के भी फोटो वो बैनर के ऊपर ले करके बैठते और आप उन दरिंदों के भी फोटो वो बैनर के ऊपर लगाते और उनके गले में भी आप फांसी के फंदे की तस्वीर आप एहतजाजी तौर पर ले करके बैठते असेंबली के बाहर। जिन्होंने मालेगांव की मजहबी शहर की हमारी बहन और बेटियों के साथ ज्यादती की और आपकी पार्टी के सुपरस्टार, आपकी पार्टी के स्टार प्रचारक जो आज जेल की सलाखों के पीछे पॉक्सो के अंदर बंद है। आपको और मुझे तो है, मैं तो ऐसा सोच रहा था कि ये इतने शर्मिंदा होंगे कि ये आएंगे नहीं अवाम के दरमियान में उम्मीदवारी का वादा करने के लिए, और इनका लीडर भी नहीं आएगा अवाम के दरमियान में अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए। शर्म हया भी कुछ चीज होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर एक औरत से जिना हो गया, एक औरत से जिना हुआ, वो आई, उसको ये डर था कि दुनिया की सजा, वो शर्मिंदा थी अपने गुनाह के ऊपर, उसको ये डर था कि मरने के बाद मेरे साथ अल्लाह की सजा बड़ी है, उससे बेहतर है कि मैं दुनिया के अंदर उसका नबी और उसकी शरीयत जो सजा दे दे वो सजा मुझे कबूल है। वो आई और उसने कहा कि अल्लाह के नबी मुझसे जिना हो गया। अल्लाह के नबी ने चेहरा दूसरी सिमत कर लिया, वो दूसरी सिमतों से आई। अल्लाह के नबी ने चेहरा फेर लिया, वो फिर आई। अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ, जब बच्चे की पैदाइश हो जाएगी जब आना। बच्चा पैदा हो गया, जब वो औरत आई, बच्चे को गोद में लेकर के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे जिना हो गया। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ, जब रोटी खाने लग जाएगा जब आना। वो औरत चाहती तो जाती, उसका और अल्लाह का मामला था, अल्लाह के दरमियान तौबा और इस्तिग़फ़ार करती, अल्लाह उसे माफ कर देता था। वो बच्चा रोटी खाने के काबिल हुआ, वो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा पकड़ा करके वो औरत अल्लाह के नबी की बारगाह में आई और अल्लाह के नबी से कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ अपने गुनाह पर, मैं शर्मिंदा हूँ अपने किए कराए पर, मुझसे गलती हो गई है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में जो सजा है वो मुझे सुना दीजिए। कल रोज कयामत अल्लाह के दरबार की सजा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरा बच्चा रोटी खाने के काबिल हो गया, उसके हाथ में रोटी दे करके मैं लाई हूँ। अल्लाह के नबी ने वो बच्चे को लेकर के किसी दूसरे सहाबी को बच्चे को दिया और कहा कि ये औरत को संसार कर दो। पहला पत्थर हजरत खालिद इब्ने वलीद ने जब वो औरत को मारा, खून का फव्वारा उठ करके हजरत खालिद इब्ने वलीद के कपड़े पर आकर के लगा। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने कराहत महसूस की।
اللہ کے نبی نے کہا کہ خالد یہ عورت کی توبہ اللہ نے ایسی قبول کی، اگر اس کی توبہ مدینے کے اندر تقسیم کر دی جائے اللہ پورے مدینے کی مغفرت کر دے گا۔ ایک غیرت ہوتی ہے، ایک حساسیت ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، اپنے گناہ پر شرمندگی ہوتی ہے، احساس و عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ آج کارپوریشن الیکشن ان قریب ہے، یہ پھر کوئی نیا جال لے کر کے پرانے شکاری نکلیں گے۔ اب وقت تو میرا بہت زیادہ ہو گیا، آصف بھائی اور دوسرے مقررین آپ کو بتائیں گے تفصیل سے، لیکن میں ایک وعدہ آپ کو آپ سے کر کے جا رہا ہوں، ایک گزارش کر کے جا رہا ہوں کہ ایک غلطی ہم سے ہوئی، مذہبی سیاست کہو یا جذباتی سیاست کہو یا اچھائی اور برائی کا نعرہ کہو، لیکن اس الیکشن کے اندر ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کے بہت احتیاط کے ساتھ اسلام پارٹی کے جتنے بھی امیدوار رہیں گے ان امیدواروں کو بھاری اکثریت سے چن کر کے کامیاب کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔